अब आपको बीपी हुआ, आप एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको बीपी की गोली दे दी। अरे बीपी हुआ क्यों, वो कारण कहाँ है, वो कारण भी तो ठीक करो ना। 5,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं इकट्ठे जिनका डायलिसिस बंद हो गया, और लगभग 2,500-3 हजार लोग हैं जिनका डायलिसिस कम हो गया। तो आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई, आपने जो पूछा किडनी फेल। अब किडनी फेल में होता क्या है, किडनी फेल में लोगों को बोला जाता है आप, उनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उनका यूरिया बढ़ जाता है। अब क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा क्यों, ये भी कोई चेक नहीं करता। अब किडनी फेल हुई क्यों, ये भी कोई चेक नहीं करता। होता क्या है, डायलिसिस शुरू हो जाता है। इस पानी के टब में बैठ के तो आप हैरान हो जाओगे ना खुद ही कि एक हमें डायलिसिस के लिए बोला जाता है, एक यहां मेरा खुद का सेल्फ डायलिसिस हो रहा है। कि जब कोई पेशेंट रूटीन में 2 घंटे बैठता है तो उसका डायलिसिस की जरूरत विद इन 7 to 10 डेज में बंद हो जाती है। देसी गाय अगर हो, जंगल में चरती हो, तो उसके दूध की दही बना के खा सकते हो। दूध नहीं पीना, दूध नालों दही चाहिए। दूध से दही हजारों गुना अच्छी होती है। फार्मी अंडा वो है कि उस मुर्गी ने अपने जीवन काल में कभी मुर्गे की शक्ल ही नहीं देखी, उसको ग्रोथ हार्मोन, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगा के उसके जननांगों को स्टिमुलेट कर करके अंडे निकाल रहे हैं। वो अंडा आपको हेल्थ कैसे दे सकता है, वो अंडा आपको ऑटो इम्यूनिटी दे सकता है, वो अंडा आपको कैंसर दे सकता है, वो अंडा आपको ब्लड को इन्फेक्टेड कर सकता है, वो आपकी किडनी फेल कर सकता है, वो लीवर फेल कर सकता है। अगर आप रॉ खाओगे, कच्चा खाओगे जैसा प्रकृति ने आपको दिया, या उस तरीके से खाओ कि उसको खाते रहे, उसमें जीवित फूड खाओ, नेचुरल फूड खाओ, वो एनर्जी देगा। ना तो किडनी फेल होगी, ना लीवर खराब होगा, ना कैंसर होगा। तो मैं दरअसल लोग क्यों उधर भेजते हैं, वो सारे उन्हें लगता है अंग्रेजी बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, हिंदी बोलने वाले पंजाबी बोलना ना अनपढ़ लगते हैं। सिर्फ असी ਉਹੀ पेशेंट ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਸੰਧੂ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਆ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੜ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਲੌਟ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਅਸੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਓ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਓ ਬਸ। ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾਓ। ਸਟੇਜ 4 ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਨੈਟ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਗੂਗਲ ਤੋਂ। ਗੂਗਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਲਸੀ ਹੈ, ਗਿਲੋਏ ਹੈ,
अश्वगंधा है, शतावर है, या नीम दे पत्ते है, या कड़ी पत्ता, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ 9-9 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕੜੀ ਪੱਤੇ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾ ਲਓ, 5 ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਇਰਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਅੰਧਾ ਦੌੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਥੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ, ਲੀਵਰ ਫੇਲ, ਸਟੇਜ 4 ਕੈਂਸਰ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿੰਦੇ ਚ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ, ਲਿਊਕੋਡਰਮਾ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਜ 4 ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕੀ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोग का कारण मेरे शरीर में पड़े हुए कुपित मल यानी कि गंदगी है, उनको निकाल दो, सर्व रोग ठीक हो गए। तो मेरे शरीर में किडनी फेल हो क्यों रही है, पहले ये समझना होगा। किडनी फेल हो रही है बीपी हाई रहने से या बीपी हाई की गोली खाने से, शुगर हाई रहने से या शुगर हाई की गोली खाने से, पेन किलर्स खाने से, एसिडिटी को कंट्रोल करने की गोलियां खाने से, या जबरदस्ती को बुखार उतारने से। आयुर्वेद में फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार को मित्र कहा गया है। शायद 90% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि बुखार मेरे भले के लिए आता है। अगर कभी बुखार चढ़े, जुकाम आए, फोड़े आए, फुंसी आए, उल्टी लगे, दस्त लगे, भगवान को थैंक यू बोलो, गुरुद्वारे में मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाओ, आपका कैंसर बच गया। अगर आपको बुखार आया तो बॉडी ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है इसको हम इंटेलिजेंट मानते हैं। हम क्या इंटेलिजेंट हिस्सा किसको मानते हैं? दिमाग को। जबकि आप सबको बता दूं, इस गर्दन के ऊपर के हिस्से से ये गर्दन के नीचे वाला हिस्सा हजारों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन लोग इस बात को जब समझ जाएंगे तो वो अपना इलाज करना भी समझ जाएंगे, और आपको पता भी लग जाएगा किडनी फेल में लोग क्या करते हैं और बॉडी क्या करती है। बेसिकली शरीर जो कुछ भी करता है मरने से बचने के लिए करता है, अपने आप को बचाने के लिए करता है। जैसे आप शादी में गए, आपने खूब सारा खा लिया, तो खा तो लिया, आके आपको उल्टियां लग गई। अब मॉडर्न चिकित्सक क्या बोलेगा? आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। जबकि आयुर्वेद क्या कहेगा कि आपकी बॉडी को वो गंध पसंद नहीं आया, उसने निकाल के बाहर फेंका। अब बताओ अच्छा कौन है? आपको शादी में खूब खा के आए, आपको पोटियां लग गई, आप मॉडर्न चिकित्सक के पास जाओगे, वो पोटियां रोकने की, उल्टी रोकने की गोली दे देगा। आयुर्वेद क्या बोलेगा? अरे भाई अच्छा हो गया, आपकी बॉडी को वो गंध पसंद नहीं आया, बॉडी निकाल के बाहर फेंक रही है। अगर बॉडी उसको, अब आप जबरदस्ती गोली खा के उन पोटियों को या उल्टी को रोक लोगे तो बड़ा रोग पैदा होगा। आप कहीं बाहर गए, आपने कुछ उल्टा पुल्टा खाया, आपकी पूरी बॉडी पे दाने हो गए, या फुंसी हो गई, या फोड़े हो गए, तो बॉडी ने वो टॉक्सिन्स निकाल दिए। अगर वो रख लेती और बाद में उसको कैंसर बना देती तो किसका नुकसान होता? तो शरीर इंटेलिजेंट है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा शरीर इंटेलिजेंट है, दिमाग के मुकाबले कईयों गुना, हजारों गुना। अब आपको बीपी हुआ, आप एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको बीपी की गोली दे दी। अरे बीपी हुआ क्यों? वो कारण कहां है? वो कारण भी तो ठीक करो ना, नहीं तो आप तो जबरदस्ती सप्रेस कर रहे हो बीपी को, ऐसे ही आप शुगर को कर रहे हो। तो आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई, आपने जो पूछा किडनी फेल। अब किडनी फेल में होता क्या है? किडनी फेल में लोगों को बोला जाता है आप, उनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उनका यूरिया बढ़ जाता है। अब क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा क्यों, ये भी कोई चेक नहीं करता। अब किडनी फेल हुई क्यों, ये भी कोई चेक नहीं करता। होता क्या है? डायलिसिस शुरू हो जाता है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हुआ, एक मशीन जिसको कृत्रिम किडनी बोला जाता है, उस पर आपको लिटाया जाता है। 4 से 5 घंटे आपको लेटना होता है और आपकी बॉडी उस फ्लूइड को निकाल देती है, वो मशीन निकाल देती है, और आप घर आ जाते हो। 3 दिन बाद दोबारा फ्लूइड भर जाता है। अब वो फ्लूइड आ कहां से रहा है?
नेचुरली बात है आपके खाए गए खाने से और आपके पिए गए पानी से, और तो कोई बॉडी में जाने का सोर्स नहीं है। यानी कि फ्लूइड भर कौन रहा है? आप। तो अगर आप वहां पर खाना बदल लो, ऐसा खाना खाओ जो मेरी बॉडी को रिजनरेट कर रहा हो, मेरी बॉडी में फालतू फ्लूइड नहीं भरता हो, तो नेचुरली बात है फ्लूइड कम भरेगा। और किसी तरीके से आप कोई ऐसी टेक्निक, मैं आपको एक टब दिखाता हूं पानी का, अभी इसी आप वीडियो में दिखा देना, पानी का टब। इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके जब पेशेंट आधे घंटे से 2 घंटे बैठता है, तो हमारे पास अब तक लगभग 5,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं इकट्ठे जिनका डायलिसिस बंद हो गया, और लगभग 2,500-3 हजार लोग हैं जिनका डायलिसिस कम हो गया। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि आप जब पानी में बैठे, गर्म पानी में 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके टब में, तो आपकी बॉडी ने अपना एक्सेस फ्लूइड निकाल दिया, जो उस मशीन ने निकालना था डायलिसिस वाली, वो पानी के टब में चला गया। तो कितनी अच्छी गर्म पानी की टेक्निक, जिससे आप अपनी बॉडी को सेल्फ डायलिसिस दे रहे हो बिना किसी साइड इफेक्ट के। क्योंकि जब आप मशीन से डायलिसिस कराते हो, तो वो जब आपकी बॉडी में एक तरफ से ब्लड जाता है और उधर से ब्लड छन के वापस आता है, तो आप सिर्फ क्रिएटिनिन यूरिया घटाना चाहते हो, लेकिन क्या वो मशीन इंटेलिजेंट है? नहीं। तो वो आपकी बॉडी का प्रोटीन भी ले लेती है, कैल्शियम भी ले लेती है, आयरन भी ले लेती है, फास्फोरस का लेवल, आपके पोटेशियम का लेवल भी डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि मशीन इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन जब बॉडी सेल्फ डायलिसिस करती है, जब हम यूरिन करते हैं तो हमारी बॉडी का सेल्फ डायलिसिस हो रहा है, पसीना निकालते हैं तो सेल्फ डायलिसिस है। बॉडी से निकलने के रास्ते क्या है? 3, यूरिन, स्टूल और पसीना। पसीना आजकल बंद है, एसी में बैठते हैं, बंद कमरों में बैठते हैं, धूप के एक्सपोज में नहीं आते हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं? गर्म पानी के टब में बिठा के आपकी तीसरी किडनी एक्टिव करते हैं, जो कि स्किन है। अब ये तीसरी किडनी एक्टिव होकर आपका फ्लूइड निकाल देती है, तो बदले में धीरे धीरे आपका वो डायलिसिस कम होने लग जाता है। और साथ में हम देते हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जिससे हम उस कमजोर किडनी को रिजनरेट करने भी शुरू कर देते हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा रिजनरेट हुई कि नहीं हुई? तो मैं हर किडनी पेशेंट को बोलूंगा कि जब भी आप थेरेपी शुरू करो, आप सबसे पहले अपना एक DTPA स्कैन कराओ, एक अल्ट्रासाउंड कराओ, और हर 3 महीने बाद दोबारा कराओ, ताकि आपको दिखे कि मेरी किडनी 6% काम कर रही थी, अब 12 कर रही है, मेरी 12 कर रही थी अब 18 कर रही है, 25 कर रही थी अब 35 कर रही है। आपको जब तक सबूत नहीं मिलेंगे ना, लेकिन आप हैरान हो जाओगे, कोई भी बड़ा डॉक्टर ना तो DTPA स्कैन कराता है, ना अल्ट्रासाउंड को मानता है, सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया की रिपोर्ट देख के आपके डायलिसिस कर देता है। क्योंकि DTPA स्कैन से आपको पता लगेगा मेरी किडनी कितने % काम अभी जिंदा है, कर रही है। तो सारा खेल नॉलेज का है। तो हमारे YouTube पे बहुत सारी वीडियोस भी हैं, और हमारा हिम्स के नाम से चंडीगढ़ और दिल्ली में हॉस्पिटल भी है। तो बहुत सारे पेशेंट किडनी फेल के, स्पेशली लीवर फेल के और स्टेज 4 कैंसर के हमारे यहाँ इलाज करा रहे हैं, और आप हैरान होगे 90% पेशेंट ਸਰਵਾਈਵ करते हैं और रिवाइव करते हैं। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, वो टब च बैठे हुए। हाँ जी आचार्य जी, ये एक पेशेंट है, मैं खुद चाहूंगा आप इनसे पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, और इस पानी में टब में बैठ के आपको कितने दिन हो गए आते हुए यहाँ पे? 4 दिन हो गए, पहले पिछले महीने भी आया था मैं। अच्छा, मेरे ट्रेन 6 था। हाँ जी, हाँ, जब यहाँ आया तो 3 हो गया सर। मतलब 6 से क्रिएटिनिन 3 हो गया इस पानी के टब में बैठ के। तो आप हैरान हो जाओगे ना खुद ही कि एक हमें डायलिसिस के लिए बोला जाता है, एक यहाँ मेरा खुद का सेल्फ डायलिसिस हो रहा है। तो आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? जो शुद्धि है वो अच्छी है, ये परिक्रमा जो है पंचकर्मा ये अच्छी पॉलिसी है और इसको अडॉप्ट करना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या और उम्र क्या है? मेरा उम्र तो 85 ईयर है सर। कैप्टन ओम प्रकाश, एक्स कैप्टन ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ? नहीं डायलिसिस कराई थी, मेरे को मेरा बेटा लाया यहाँ शुद्धि में, हाँ जी, तो मैं यहाँ आ गया और मेरे को यहाँ डॉक्टर साहब से मिला मैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया और उन्होंने कहा कि आपकी थेरेपी होगी, और मैं थेरेपी करने के लग गया। ਤੇ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ? लग गया फट जी। हाँ, ਤਾਂ ਆਚਾर्य ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੱਬ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। टोटल टाइम हम 2 घंटे बोलते हैं कि 2 घंटे आप इस पानी के टब में बैठोगे, तो धीरे धीरे आप बढ़ाओ ना टाइम, जैसे कोई 15 मिनट बैठेगा, आधा घंटा बैठेगा, 2 घंटे तक बैठते हैं अगर कोई पेशेंट इस पानी के टब में, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के स्किन से वो, वैसे भी तो मशीन में आपको 4 घंटे लगते हैं ना डायलिसिस कराने में, तो ये 2 घंटे उससे ज़्यादा बेटर है बिना साइड इफेक्ट के। धीरे धीरे ये 2 घंटे, पौने 2 घंटे, फिर 1.5 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर धीरे धीरे बॉडी
अपनी जब किडनी को हील कर लेती है, पहले से बेटर कर लेती है, तो ये पानी में बैठना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। शुरुआत में 2 घंटे बैठना पड़ता है। तो हमने जो देखा है कि जब कोई पेशेंट रूटीन में 2 घंटे बैठता है तो उसका डायलिसिस की जरूरत विद इन 7 to 10 डेज में बंद हो जाती है। जैसे इनका क्रिएटिनिन 6 था, अगर ये एलोपैथी में गए तो उनको डायलिसिस बताया था इनको कि डायलिसिस करना पड़ेगा, लेकिन ये इधर आ गए आयुर्वेद में, तो इनका बिना डायलिसिस ही इसके थ्रू ही वही किडनी रिवाइव करना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ये पंचकर्मा बेड है, यहाँ थेरेपीज होती हैं। तो ये सारी थेरेपीज हैं आयुर्वेद की, पंचकर्मा, और ये हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं इसको, गर्म पानी की थेरेपी। 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है इसमें, और 40 डिग्री टेम्परेचर ये यहाँ सामने हम इसको मेंटेन करके पेशेंट को जितनी देर इजी होता है और जितनी देर पेशेंट इसमें बैठता है, साथ में वो अपना एक्यूप्रेशर और अपनी एक्सरसाइज करता रहता है ताकि उसका मन भी लगा रहे और टाइम भी पास हो जाए। किन्ने क जाने आज तक सही हो गए? टोटल हमारे हॉस्पिटल का और यहाँ का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो 5000 पेशेंट ऐसे हो चुके हैं जिनका डायलिसिस लगभग 90% तक कम हो चुका है। किसी का 10 दिन में होने लग गया, अब किसी का 15 दिन बाद हो रहा है, और किसी का बिल्कुल बंद हो गया, 3-3 महीने हो गए, किसी को 6-6 महीने हो गए। ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਜਾਂਦਾ? आपके सामने पानी के टब का क्या खर्चा आएगा? पानी तो भारत में पानी और हवा तो फ्री है एक तरह से, तो पानी में बैठना तो कोई खास खर्चा नहीं है। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ उसके लिए हम बस गीजर लगा देते हैं और एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लगा देते हैं, वो अपने आप पानी जैसे ही ठंडा होगा ये अपने आप ऑन हो जाता है और वापस गीजर स्टार्ट हो जाता है, 40 डिग्री मेंटेन हो जाता है। तो बड़े आसानी से लोग घर पे लगा सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं लोग घर पे करें, हमारे पास आए, हम सिखा देंगे, वो खुद घर पे करें। हम तो ये चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान, जितने भी लोग किडनी फेल के पेशेंट हैं, लीवर फेल के पेशेंट हैं, स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट हैं, अगर ये टब घर पे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी बॉडी उनको डिटॉक्स करेगी और अंदर अपनी जो गांठें हैं, जैसे कैंसर की बॉडी में गांठें हैं, कैंसर सेल्स हैं, उनको बॉडी खुद ही हराएगी। हम तो सिर्फ हेल्प करेंगे डाइट चार्ट में और उनको आयुर्वेद की हर्ब्स बताने में, ये हमारी हेल्प रहेगी। थेरेपी घर पे खुद करे पेशेंट, हम तो चाहते हैं ये। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਜ 4 ਵਾਲਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ? तो भी ये दवाई है। गर्म पानी में अगर आप बैठोगे तो बॉडी टॉक्सिन्स तो निकाल लेगी ना। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। आयुर्वेद में कहा गया शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि देह को शुद्ध करते जाओ, 100 वर्ष तक स्वस्थ जियो। तो अगर आप इसमें बैठते हो तो बॉडी टॉक्सिन्स निकालती है, तो देह शुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है तो स्वस्थ हो रही है। ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਵਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ठीक है, ਲੀਵਰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਗਤ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੀ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਸਟੇਜ 2 ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਪਾਨ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਗੇਹੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸ ਫੂਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 10-12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੇਹੂੰ ਤੇ ਚਾਵਲ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਗੇਹੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਮੱਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਕਲੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੁੱਧ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਛੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੈਂਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਤਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਬਾਕਾ ਆਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਦਹੀਂ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ
ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਣਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁੱਧ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁੱਧ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁੱਧ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 350 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। हिंदुस्तान ने गां के उत्ते कहावत किया है, गाय हमारी माँ है। जब भैंस के ऊपर अकल बड़ी के गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। पहली बात तो गाय और भैंस पे कहावतें हैं। अब ये कहावतें किसने बनाई? हमारे किसी पूर्वज ने कुछ सोच समझ के बनाई होंगी। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने गाय को मां कहा, भैंस को नहीं कहा। तो इसका मतलब भैंस का दूध पीने लायक नहीं है उनकी नजरों में, या हो सकता है उन्होंने काली भैंस देखी, कहावतें बना दी, मे भी। तो अब हम साइंस की बात करते हैं। ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ? देसी गाय अगर हो, जंगल में चरती हो, तो उसके दूध की दही बना के खा सकते हैं। दूध नहीं पीना, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਦਹੀਂ ਚੰਗੀ। दूध से दही हजारों गुना अच्छी होती है। दूध नहीं पीना, दही खाओ। कभी आपने कान्हा के बारे में, कृष्ण कन्हैया के बारे में सुना है? उसको कभी दूध चोर लिखा गया? माखन चोर लिखा गया, दही का चोर लिखा गया। तो कहीं दूध का जिक्र नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी नहीं है, ग्रंथों में भी नहीं है। दूध आया कहां से? दूध गाय भैंस देती हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं। और दूसरी बात, दूध जब माँ देती है वो कब देती है? जब वो, मैंने बताया, बच्चा देती है। जब गाय को पहला बच्चा होना चाहिए, असूल से उसकी उम्र 4 साल होनी चाहिए, लेकिन आजकल 15 महीने की बछड़ी को ही प्रेग्नेंट करके माँ बना देते हैं। 9 महीने प्रेगनेंसी रहती है, फिर 9 महीने लगभग दूध आता है। अब जब 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, वो 9 महीने दूध देती है, तो 9 महीने बाद 1 साल तक का गैप डलना चाहिए यूट्रस को मजबूत होने के लिए, तब दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहिए। लेकिन जो गवाला है, जो इस टाइम दूध पालक है, वो क्या करता है, जैसे ही दूध बंद होने वाला होता है, उसको एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा के 2-3 महीने फालतू दूध लेता है उससे। फिर जैसे ही दूध बंद होता है, वो दोबारा उसको प्रेग्नेंट कर देता है। और एक बार भी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती, सब आर्टिफिशियल होता है। यानी कि एक माँ, जिसको गाय को माँ कह रहे हैं, उसका बार बार आप बलात्कार कर रहे हो और फिर उम्मीद लगा रहे हो मेरे को अच्छा दूध दे मेरी हेल्थ के लिए। फिर 9 महीने बाद वो दूध देना बंद कर दिया, फिर उसको प्रेग्नेंट कर देते हो, फिर 9 महीने दूध निकालते हो, फिर 9 महीने बाद प्रेग्नेंट करके दूध निकालते हो। तो जो गाय का जीवन 24-25 साल का है असूल से, वो आज की डेट में 10 साल के अंदर ही इतना कंडम हो जाती है गाय कि वो चलने लायक नहीं बचती, फिर उसको आप बूचड़ खाने को बेच देते हो। तो हम ऐसे दूध से कैसे उम्मीद लगाएं कि वो मेरे बच्चों की हेल्थ देगा? जैसे हम अंडों की बात कर लेते हैं, 2 तरह के अंडे सुनते हो आप, फार्मी अंडे और देसी अंडे। तो मैं दर्शकों से ही पूछता हूं, 90% लोगों को पता नहीं होगा देसी अंडा क्या होता है, फार्मी अंडा क्या होता है। मैं आपसे ही पूछता हूं, देसी अंडा और फार्मी अंडा में फर्क क्या है? ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। देसी अंडा जो मुर्गा मुर्गी के बिलन से नेचुरल तरीके से पैदा होता है, उसको देसी अंडा बोलते हैं। फार्मी अंडा वो है कि उस मुर्गी ने अपने जीवन काल में कभी मुर्गे की शक्ल ही नहीं देखी, उसको ग्रोथ हार्मोन, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगा के उसके जननांगों को स्टिमुलेट कर करके अंडे निकाल रहे हैं। सोचो, एक लेडी को आप जबरदस्ती उसके जननांगों को डिस्टर्ब करके उस अंडे को ले रहे हो और मुर्गे से उसको कभी मिलवाया नहीं, वो अंडा आपको हेल्थ कैसे दे सकता है? वो अंडा आपको ऑटो इम्यूनिटी दे सकता है, वो अंडा आपको कैंसर दे सकता है, वो अंडा आपको ब्लड को इन्फेक्टेड कर सकता है, वो आपकी किडनी फेल कर सकता है, वो लीवर फेल कर सकता है। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि जितने भी लोग हैं इस चीज को समझें। तो दूध भी ऐसे ही पैदा किया जा रहा है आजकल। गाय को कभी बैल के संपर्क में नहीं लेके आ रहे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसको प्रेग्नेंट करते हैं, लगातार टीके लगा के, उसको हार्मोन्स दे के, उसके जननांगों को स्टिमुलेट करके दूध निकालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो वो दूध भी हमारे लिए हेल्दी नहीं है। अगर आपको खाना है तो आप दही खाएं,
नारियल के दूध का। नारियल का गरी ले लो, उसको कद्दूकस करके उसको कपड़ छान करके दूध निकाल लो, उसका दही जमा लो ना। जैसे दूध से दही जमती है ऐसे उससे दही जम जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हरी मिर्च होती है ना, उसको बीच में से काट लो, 4 डंडियां हरी मिर्च उस दूध में डाल दो, दही बन जाएगी, क्योंकि मिर्च के फ्लोरा से दही बन जाएगी। तो हमें अपने अंदर के माइक्रोबायोम, जो मेरी आंतों के अंदर गट बैक्टीरिया हैं, उनको सेट करना है, इसके लिए दही चाहिए। नहीं तो आप सबसे अच्छी